A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School and class. Today we all are going to continue our chapter number 9 from your history textbook. The name of the chapter is Traders, Kings and Pilgrims. So in our earlier class, we discussed about Buddhism. We discussed about, first of all, we discussed about Silk Route. After that, we talked about Buddhism. We talked about Buddhism, and under that we talked about two older version and new version of Buddhism. Older version is known as Theravada Buddhism, and in Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Indonesia, Theravada Buddhism was like very much popular. And in Mahayana Buddhism, two things are like distinct from the Theravada Buddhism, that is under Mahayana Buddhism. The statues of Buddha were made, and especially in Mathura and Takshila, these statues, mostly these statues made. And second one is a belief in Bodhisattvas developed under Mahayana Buddhism. Bodhisattvas पे जो बिलीव था, बोधिसत्वास जो बुद्धा के फॉलोवर्स थे और जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने इनलाइटमेंट अटेन कर ली है मेडिटेट करके, और मेडिटेट करके उन्होंने इनलाइटमेंट अटेन कर ली है, और उसके बाद वो लोगों की हेल्प करते हैं, अलग रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बोधिसत्वास। अब लोगों को बोधिसत्वास पे भी बिलीव होना स्टार्ट हो चुका था। Okay, now our next topic is the quest of the pilgrims. The quest of the pilgrims. So first of all, what is the meaning of the quest? Quest means search for something. Quest means search for something. So the quest of the pilgrims means pilgrims. We are like so many travelers are in the search, are in the pursuit of something. किसी ना किसी चीज की तलाश कर रहे थे, वो pilgrims की, travelers की जो है, travelers की, और जो आपके pure places होती हैं उनकी सर्च में लग गए। As traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. अब देखो बहुत सारे ट्रेडर्स, वी टॉक्ड अबाउट सिल्क रूट, और हमने उसमें देखा कि जो चाइनीज थे दे इन्वेंटेड सिल्क, and the technique behind it was like it was secret for thousands of years. So तो चाइनीज क्या करते थे, एक जगह दूसरे प्लेसेस में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, आपके सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो उसे सिल्क को एक्सपोर्ट करते थे। रोमन एम्पायर में बहुत फेमस था। तो उस टाइम पे जिस रूट से चाइनीज ट्रैवल करते थे उस रूट का नाम सिल्क रूट दिया गया, ठीक है। अब ट्रेडर्स तो थे, जो बिजनेसमैन तो थे, अब वो बहुत लंबे जर्नीज में निकलते थे, कुछ लोग कैरावेंस में निकलते थे, कुछ लोग शिप्स में निकलते थे, तो उनके साथ पिलग्रिम्स भी ट्रैवल करते थे। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? पिलग्रिम्स होते हैं जो तीर्थ यात्री होते हैं, ठीक है, जो तीर्थ यात्री होते हैं, ऐसे ट्रैवलर्स जो सेक्रेड प्लेस में ट्रैवल करते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। रिलीजियस रीजंस के वजह से जो भी सेक्रेड प्लेसेस में, पवित्र जगह में जो ट्रैवल करते हैं, जो वर्शिपर होते हैं, उसको बोलते हैं हम पिलग्रिम्स। ओके, पिलग्रिम्स आर men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship. Who are pilgrims? Pilgrims are men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship. Now, if you are visiting Kedarnath, if you are visiting Rishikesh, Haridwar, Badrinath, Somnath, Rameshwaram, etc., etc., तो आप किस मोटिव से निकले हो? आप भगवान के दर्शन के लिए निकले हो, राइट? आप वर्शिप के लिए निकले हो, बिकॉज दीज प्लेसेस आर कंसिडर्ड एज होली प्लेसेस, तो इसलिए आप ऐसी प्लेसेस में जा रहे हो। तो ये
अगर आप ऐसे रिलीजियस रीजंस के वजह से ऐसे सेक्रेड प्लेसेस पे ट्रैवल करते हो तो यू आर पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स क्या होते हैं? ऐसे मैन और वुमेन जो जर्नीज करते हैं। कहाँ की जर्नीज करते हैं? होली प्लेसेस की। होली प्लेसेस मतलब सेक्रेड प्लेसेस, जो पवित्र स्थान होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वहां पे ट्रैवल करते हैं इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप, वर्शिप की फीलिंग से, अपने डिवोशनल फेथ के वजह से। The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims. Faxian, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Xuanzang, who came around 14 years ago, and Ai Kuang, who came about 50 years after Xuanzang. They came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries. Now, the best known pilgrims are the Chinese Buddhist pilgrims. चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, ऐसे चाइनीज पीपल जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो बुद्धा को फॉलो करते थे, ठीक है। तो वो उसमें से आज से हम सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे यूज किया गया है इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए, इंडिया के लिए यूज किया गया है। तो जो फाजियन थे वो इंडिया में आज से 1600 साल पहले, 1600 years ago, फाजियन केम टू इंडिया। और ज़ुआनज़ांग आज से 1400 साल पहले, 14 years ago, he came to India, and Ai Kuang आज से 1350 years ago, Ai Kuang आए, ठीक है। आई क्विंग आई। सो ये किस लिए आए थे? ये बुद्धा की लाइफ, जहां जहां बुद्धा की लाइफ बहुत ज्यादा, जैसे सांची हो गया, आपके मदुराई हो गया, ऐसी प्लेसेस जहां पे बुद्धा की लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, ठीक है, जहां पे बुद्धा को अटेनमेंट मिली थी। आपका प्रेजेंट डे बिहार का एरिया हो गया, ठीक है, लुम्बिनी हो गई। तो ऐसे प्लेसेस में वो विजिट करने के लिए आए थे, और ऐसे मोनेस्ट्रीज में जहां पे बुद्धा रुका करते थे, ऐसी जगह पे वो विजिट करने के लिए आए थे, ठीक है। तो कुछ बेस्ट नोन चाइनीज पिलग्रिम्स, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स कौन थे? चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाजियान, देखो, फाजियान, Xuanzang and Ai Kuang. These are the 3 Chinese Buddhist pilgrims. Each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them. Now, फाजियन, ज़ुआनज़ांग एंड आई कुआंग, तीनों ने ही, और भी जितने भी थे, इन तीनों के बारे में तो बताया ही गया है, साथ में और भी जितने भी पिलग्रिम्स थे, वो जो भी उनकी जर्नी होती थी, ठीक है, जो वो जर्नी करते थे, वो बताते थे कि कितनी डिफिकल्ट है उनकी जर्नी, क्या क्या उनको डेंजर्स फेस करने पड़ रहे हैं ट्रैवल करते टाइम, और कौन कौन सी कंट्रीज उनको जाना पड़ रहा है, कौन कौन सी मॉनेस्ट्रीज वो गए, और उसके बाद कौन कौन सी बुक्स वो अपने साथ वापस लेकर आए। इन सब के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। नाउ Xuanzang, who took the land route back to China through the northwest and central Asia, carried back with him statues of the Buddha made of gold, silver, and sandalwood, and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. Now, Xuanzang, उन्होंने चाइना जो वापस जब चाइना जा रहे थे, तो उन्होंने लैंड रूट लिया, और वो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से होते हुए गए थे। So with him he carried some statues of the Buddha made of gold, silver and sandalwood, सोने, चांदी और चंदन से बनी जो बुद्धा के स्टैच्यूज थे, वो अपने साथ में वो लेकर गए। एंड 600 मैन्युस्क्रिप्ट, 600 मैन्युस्क्रिप्ट, 600 हाथों से लिखी किताबें वो लेके गए, और उनको 20 हॉर्सेस में,
20 हॉर्सेस के बैक में उनको लोड करके वो लेके गए थे। 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स उसमें से जो थी वो लॉस्ट हो चुकी थी। जिस बोट पे वो बैठा था वहां से जो है इंडस के थ्रू जा रहा था, तो इंडस से वो नीचे गिर चुकी थी, वो समुद्र में बह चुकी थी। एंड उसके बाद उसने अपनी रेस्ट जितनी भी लाइफ रही थी उसने संस्कृत से चाइनीज में उसको ट्रांसलेट करने में अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर दी थी। ठीक है। So, how Faxian returned to China? Faxian returned to China. Faxian began his journey back home from Bengal. He boarded a ship belonging to some merchants. They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. Faxian threw away his meager personal belongings but clung to his books and the statues of the Buddha that he had collected. Finally, the storm subsided after 13 days. This is how he described the sea. The sea itself is boundless in extent. It is impossible to know east or west, except by observing the sun, moon, or stars in their motions. If it is dark, rainy weather, the only plan is to stir by the wind. It took him more than 90 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. Now Faxian जो है उन्होंने चाइना कैसे रिटर्न हुए, उन्होंने बंगाल से जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उन्होंने एक शिप जो है मर्चेंट्स के साथ, मर्चेंट्स जो आपके बिजनेसमैन होते हैं ना, उन्हीं के लिए वो वर्ड यूज किया गया है। उनके साथ उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और उनको 2 ही दिन हुए थे अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए और उतने में ही बहुत भारी जो हैवी तूफान आ चुका था, बहुत भारी तूफान आ चुका था। तो जो भी मर्चेंडाइज थे उन्होंने थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज, मतलब जो भी मर्चेंट्स थे उनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जो भी उनके गुड्स थे, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और अपने बोट का, अपने शिप का वेट कम करने के लिए क्या किया, वो जितने भी उनके गुड्स थे उनको पानी में क्या कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, जिससे कि शिप जो है डूबे ना। फाजियन ने भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जितनी भी थी वो सारी चीजें उन्होंने फेंक दी थी। बट क्लंग टू हिज बुक्स, उनकी जो बुक्स थी उनको वो उन्होंने टाइटली पकड़ के रखा था। बट क्लंग टू हिज बुक्स एंड द स्टैच्यूज और बुक्स को उन्होंने बहुत टाइटली पकड़ के रखा था जो भी उन्होंने कलेक्ट किया था। फाइनली 13 डेज के बाद जो आपका स्टॉर्म था, तूफान था, वो कम हुआ एंड उन्होंने सी को कैसे डिस्क्राइब किया है, उन्होंने बोला सी जो थी मतलब बाउंडलेस मतलब हमें कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये इम्पॉसिबल सा हो रहा था कि ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है, एक्सेप्ट कि उनको सन, मून, स्टार्स और उनके मोशंस की वजह से पता चलता था कि हम कौन सी डायरेक्शन में है। और अगर कभी नाइट, इफ इट इज डार्क, मतलब नाइट की बात की हुई है और रेनी वेदर की बात की हुई है कि द ओनली प्लान इज टू स्टर बाय द विंड। अगर कोई डार्क नाइट होता था और या फिर रेनी वेदर होता था तो हम विंड पे ही डिपेंड रहते थे कि विंड अपने आप ही जो है शिप को चला लेगी। उनको 90 डेज लगे कि वो जावा, एक आइलैंड है, वहां पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने 5 मंथ्स तक हॉल्ट किया, 5 मंथ्स तक वो वहां पे रहे एंड उसके बाद उन्होंने दूसरी मर्चेंट शिप जो है ली और उसके बाद वो चाइना गए थे। ठीक है, सो क्लास one more thing about this topic. Nalanda, a unique center of Buddhist learning. Nalanda. Xuanzang and other pilgrims spent time studying in Nalanda. Present day Bihar में है Nalanda. The most famous Buddhist monastery of the period. This is how he described it. Nalanda की बात करते हैं, बहुत ही famous monastery रही है Nalanda. ठीक है, इवन आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा। तो नालंदा इसीलिए ही फेमस है कि बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, बहुत फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और वहां पे वो जो जगह है बुद्धिज्म की वजह से, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की वजह से बहुत फेमस है।
The teachers are men of the highest ability and talent. They follow the teachings of the Buddha in all sincerity. The rules of the monasteries are strict and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day and the old and the young mutually help one another. Learned men from different cities come here to settle their doubts. The gatekeeper asks new entrants difficult questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. So now Xuanzang जो है नालंदा पढ़ने के लिए गए थे और उन्होंने नालंदा को कैसे डिस्क्राइब किया है कि जो टीचर्स होते थे बहुत ही हाई एबिलिटी और हाई टैलेंट के बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स होते थे और वो बुद्धा को बहुत ही सिंसियरली जो है वो बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़ाते थे, फॉलो करते थे और इवन मॉनेस्ट्रीज के रूल्स भी जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे. मॉनेस्ट्री आप गुरुकुल से समझ लीजिए यहाँ पे कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आपके रूल्स होते थे और सब उन्हें फॉलो करते थे. जो डिस्कशंस होते थे दिन भर हमारे डिस्कशंस चलते थे. ओल्ड और यंग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते थे. जो भी नॉलेजेबल मैन थे, लर्नड मैन थे, वो अलग अलग सिटीज से आते थे और अपने डाउट्स को क्लियर करते थे यहाँ पे. और जो गेटकीपर्स थे ऐसा नहीं था कि कोई भी आ रहा है और उनसे मतलब कोई भी इस ये नालंदा में आके पढ़ सकता है. गेटकीपर्स जो थे, जो भी न्यू एंट्रीज होती थी उनसे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते थे एंड अगर वो जवाब दे पाते थे, इफ दे आर अलाउड ओनली इफ दे ऑल आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. तो 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10, हर 10 में से 7 या 8 जो भी लोग थे वो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते थे. तो ये एक यूनिक सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का और उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है कि कितना डिफिकल्ट था वहां पे एंट्री लेना. Okay, so class, this is all about today. So go through this topic, the quest go through this topic, and if you face any problem, do let me know. The quest of pilgrims. Okay, bye bye, take care.